Hello students, welcome to the economics class. Today we are going to start the new chapter in the statistics is measure of central tendency, that is called arithmetic mean. Under this chapter, first we are going to understand the meaning of average, what is central tendency all about, and its merits and demerits, types, and so on. After that we will discuss the various numerical in this chapter. It's very interesting. Here let's begin. As you know, in our daily life, day-to-day activities depend upon the averages. Consciously and unconsciously, people apply averages in our daily life. Without average, we cannot be exist or the measure the things. We cannot be able to measure the things. Okay, so here first we have to understand the what is the meaning of central tendency or the average all about. So here, what is the central tendency? Central tendency refers to the central value or the representative value of whole statistical series. You can say, in other words, it is the value, it is the main point, or that representative value which representing the whole series. Such a value is called central tendency or the average value. Now, after understood the meaning or definition of central tendency, here what are the objective of it? You can say objective, you can say importance, significance, merits, and so on. Here, average help in making the comparison of different sets of data. You can easily compare the two data with the help of averages. Now, average help in formulation the various policies. Government utilize the average, use the average method for formulating the various policies. Okay, plan for the economic growth and development. Even people also apply averages in most of the situations or the conditions. As you know, as the student study statistics in the syllabus, so here is the example of it. Averages also help to convert the complex number into the easiest one. जैसे कि हम आपको बता दें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो डिफिकल्ट नंबर होते हैं, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू द एवरेज एंड इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अगर आप उनका एवरेज निकाल लेते हैं तो आप उनको अच्छे से समझ पाते हैं. नेक्स्ट है, एवरेज इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. वेरियस स्टडीज एंड द स्टैटिस्टिकल स्टडीज और द रिसर्चेस can be analyzed with the help of average. Next one, average represent the universe or the mass. Average is the value, is the main point which represent the whole mass or the universe. The last one, data can be easily understood with the help of average. So these are the importance here we are discuss. Now there are some few demerit of it also here. Let's begin. So these are the demerit. Demerit here, sometimes it draw the wrong conclusion. जैसे कि हम आपको बता दें, हर एक मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस और उसके डीमेरिट्स भी होते हैं. जैसे कि हमने आपको इंपॉर्टेंस बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, उसके डीमेरिट्स भी हैं. अब एवरेज कभी कभी क्या करता है, आपको रॉन्ग कंक्लूजन भी देता है. ठीक है. समटाइम्स इट इज अनसुटेबल इन द केस ऑफ परसेंटेज और द प्रोपोर्शनेट वैल्यू. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इट. तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया. नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एवरेजेस. ये देखिए, हमने ये टाइप्स ऑफ एवरेज एक ग्राफ के थ्रू समझाया है, एक क्लासिफिकेशन हमने किया है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेस. द फर्स्ट वन, द एवरेज क्लासिफाइड इनटू टू. वन, अर्थमेटिक एवरेज, mathematical average, and the positional average. Mathematical average are further classified into three: arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. Okay, arithmetic mean are further classified into two: simple arithmetic mean, weighted arithmetic mean. Okay, now arithmetic mean is the average, is the value which is representing the whole series. ठीक है, it is very popular method also. यहाँ पोजिशनल एवरेज क्या है, हमने इसको क्लासिफाइड किया इनटू द थ्री वेज. फर्स्ट वन, मीडियन,
सेकेंड वन पार्टीशन वैल्यू एंड द थर्ड वन मोड। सो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यू, वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड सिंपल अर्थमेटिक मीन के हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, आपको आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एवरेजेस। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज विच अरेंज और अनअरेंज डेटा। ठीक है, अब सीरीज क्या होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इन द फॉर्म अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ओके, अब हम आपको ये बताएं कि सीरीज कितने तरह की होती है। जनरली ये 3 तरह की होती है। इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको उसकी हर एक की फ्रीक्वेंसी दी होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। फ्रीक्वेंसी you can say a number which is repeating most of the time, that is called frequency of that number। मैंने कहा कि एक वन जो है आपका नंबर, न्यूमेरिक नंबर जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है इन अ सीरीज। अगर वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसकी 5 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, तो वो हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। थर्ड वन जो आपके स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्लास इंटरवल दिया होता है, आप उसके हिसाब से करते हैं। हम ये जो सीरीज है हर एक के सीरीज के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझाएंगे किस तरह से मीन निकाला जाता है, अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। मगर अर्थमेटिक मीन के भी 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। हर एक सीरीज में डायरेक्ट मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं और इन शॉर्टकट मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सो हम दोनों मेथड को समझेंगे किस तरह से मीन निकाला जाता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। कैलकुलेट मीन। क्वेश्चन क्या है पहले आपका, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन और एवरेज, यू कैन से एवरेज। ओके, अब सबसे पहला केस आपका क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का। देखिए हमको क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, x में आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको दिया है 82, 84, 86, 83, 80, 88, 85, 89, 79, 86, ये आपको क्या दिया है, सीरीज दी है। अब हम यहां पर सीरियल नंबर लिख लेंगे बेटा। सीरियल नंबर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वी हैव 10 series, okay, and these series are not arranged in a systematic manner। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताएंगे मीन निकालने का। मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, x के ऊपर बार, मीन इक्वल्स टू सिग्मा f x अपॉन n। ये तो हो गया आपका अप्लाई डिस्क्रीट सीरीज में। मगर इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। ओके, ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। अब सिग्मा माने क्या होता है, सम ऑफ दीज नंबर्स। ओके, और n क्या हुआ आपके पास, सीरियल नंबर का कितने लास्ट में आपका टोटल है, मतलब कि 10 आपका क्या है, 10th आपके पास सीरीज है, तो वो आपके लिए n हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा f भी बोल रहे हैं आप इसको सिग्मा f भी लिख सकते हो यहाँ पे, या n भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ n। ठीक है, अब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा आपका, 82 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 83 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 85 प्लस 89 प्लस 79 प्लस 86। तो ये आपके लिए हो गया 842 सिग्मा x इक्वल्स टू 842। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। किस में करेंगे, इस फॉर्मूले में। तो यहां आ जाएगा
842 divided by 10 equals to 84.2 is the average or the mean. Okay, so simple, you can easily calculate the mean by the individual method or by the direct method. Okay, I hope you understood this method. देखिए, अब हम मीन निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज में। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकालना होगा, x हमको दिया है, x में से हमको क्या निकालना है, dx निकालना है बच्चों। देखो dx कैसे निकलेगा, हमें कोई भी x में से एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा। a इक्वल्स टू अज्यूम, a क्या हुआ, मान लिया अजम्पशन हुआ, अज्यूम जो हम इसमें से एक नंबर कोई सा भी अज्यूम कर रहे हैं। आप 82 भी ले सकते हो, 84 भी ले सकते हो, कोई सा भी 1 to 10 से लेकर आपका कोई सा भी नंबर जो x सीरीज में है, कोई सा भी नंबर आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। अभी हम कौन सा ले रहे हैं, 83 ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम सर्किल कर देते हैं। 83 हमने अज्यूम कर लिया। अब dx निकालने का जो फॉर्मूला है वो निकलता है आपका x माइनस a से। क्या निकलता है, dx हम यहां लिख देते हैं फॉर्मूला, dx इक्वल्स टू x माइनस a। dx निकालने का फॉर्मूला ये हुआ आपका। अब देखिए dx हमने a अज्यूम कर लिया 83, x की सीरीज हमको मालूम है। अब देखिए इसमें माइनस प्लस आपको क्या करना है, माइनस के साइन को आपको कंसिडर करना है। 82 माइनस 83 करेंगे तो यहां पर माइनस का 1 आएगा। 84 माइनस 83 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 86 माइनस 83 करेंगे तो प्लस 3 आएगा। 83 माइनस 83 0, 80 माइनस 83 माइनस का 3, 88 माइनस 83 तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 5, 85 माइनस 83 प्लस का 2, 89 माइनस 83 प्लस का 6, 79 माइनस 83 माइनस का 4, 86 माइनस 83 प्लस का 3। तो ये आपके लिए आपको साइन कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर आपको ये इन प्लस माइनस से बचना है तो आप सबसे छोटा नंबर लीजिए, जिससे आप क्या कर सको, माइनस में अगर आपको इग्नोर, माइनस की वैल्यूज को आपको इग्नोर करनी है तो आप सबसे छोटा नंबर अज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अब इसको हमको क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू को हमने प्लस करना है और नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यूज को हमने माइनस कर देना है लास्ट में। अब देखिए 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, यहां हो गया 16 प्लस 3 या 4 20, ठीक है, 3 प्लस 1 4, तो 16 प्लस 4 20 हो गया। अब 20 हो गया, अब 20 को आप माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और माइनस का 13 माइनस 13 के बाद आप माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 12 आ जाएगा, जो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डी एक्स सम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा डी एक्स निकालना है। तो अगर हम क्या करेंगे, dx का सम करेंगे तो, और सम पॉजिटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगेटिव माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सिग्मा dx। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप कर देंगे। a हमने अज्यूम किया था 83 प्लस सिग्मा dx हमारा आया 12, और आपको n पता है बच्चों 10। इसको आप क्या करेंगे, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से आपको क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है। तो आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। पहले 83 प्लस 1.2 करेंगे, ये आ गया। अब इसको प्लस कर देंगे, 83 प्लस 1.2 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 84.2 इज द आंसर। ये हो गया आपका मीन। ओके, I hope you understood the shortcut method of shortcut method of mean or the average in a individual series. Okay. Later on we will be discuss the discrete series. Thank you.